हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज में काफी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिए, बट स्टिल दिस चैप्टर needs a small brief understanding of the topics plus your answer writing practice. So with today's session we are going to discuss one model, okay, which is known as force field theory of change. Okay, I already discussed with you that there are different theories which is given by the different scholars, different authors, and on the basis of research on during that phases, which is proven when executed on the ground level and the industrial wide level. Okay, and that's why it's applicable to the wide level. So there are n number of theories. So should we require to study all those theories? Should we need to cover all those theories? No. For specific, because if you're going to cover all those theories, you are never ever going to complete your course. ठीक है? So सबसे important part क्या है? When you check your previous year paper, when you check your, those papers, what you analyze is there are very limited theories, and that is also you can skip when there is an option to choose. So you can skip those theory when there is an option to choose, but we try to cover few theories which you can use as a part of answer writing in between a normal static or some artistic questions. Why? Because it's keep you out of those crowd who are writing the answers in a lay languages, and you with the help of theory can put something good. So I'm going to explain you today's this theory which is given by the Kurt Lewin. Okay, and there is no other theory is very important in case of theory of change or a model of change, but I will discuss few theory which were asked in some other exams, but that need some your eyesight, that you just go through it once, have a keep in your mind and keep reviewed it, so that if it come or if it an option to come, you can write as an and as an artistic answer, you can use it. Okay, but this theory is the main theory and this is the only theory we are going to discuss, okay, under the theory of change, like management of change. तो आज के सेशन में ये जो मॉडल करने जा रहे हैं, मॉडल ऑफ चेंज, विच इज कॉल्ड एज अ फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज है, मैंने आपको कई बार कई सेशंस में भी इंट्रोड्यूस किया कि कई सारे मॉडल्स होते हैं, कई सारी थ्योरीज होती हैं, तो सारी थ्योरीज थोड़ी नहीं रिलेवेंस है, तो हम बहुत ही लिमिटेड थ्योरीज को करते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि यू हैव अ वेरी हार्ड जोन और आपके एग्जाम में एक ऐसी क्रिटिकल थ्योरी आ जाती है, तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, वो वेरी वेरी रेयर 0.001% आर दी चांसेस टोस। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शनल में होती है तो आप उसको आराम से स्किप कर सकते हैं, देयर इज अ नो बिग डील। स्टिल इस थ्योरी के अलावा या किसी भी चैप्टर्स में हमने जहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज कवर की हैं, वहां पे अगर किसी एग्जाम्स में, रिसेंट एग्जाम्स में, किसी और अदर एग्जाम्स में थ्योरीज पूछ ली जाती है, तो मैं उसको सेपरेटली जो है आपको एज नोटिंग, एज अट्रैक्टिव नोट के फॉर्म में आपको टीम जो है वो शेयर कर लेगी, ठीक है, और आप उसको अंडरस्टैंड रीड करके उसको प्रॉपरली उस पर वर्क कर सकते हैं। चांसेस बहुत कम है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक्स्ट्रा राइटिंग अगर आपका टाइम अलाउ करे तो एक बार उसको गो थ्रू कर लें, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। स्टिल इफ यू फेस any kind of questions with any understanding, you can ask at your dashboards if you opted for. Okay, so this is the main theory। ये एक मेन थ्योरी है जो मॉडल ऑफ चेंज में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज इस सेशन में हम इस थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिना ज्यादा समय, अब मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है थ्योरी के बारे में, और स्टार्टिंग जब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया मॉडल्स क्या है, थ्योरी क्या है और कितना पढ़ना है, क्या कितनी लिमिट है। लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं है, थ्योरी में कहीं से भी बहुत कुछ आ जाता है, बट हम सिलेबस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे, पास्ट पेपर के एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रिक्ट रहेंगे, प्लस अगर करंट किसी एग्जाम्स में कोई थ्योरी जो वाइड वेरिएंस में पूछ ली जाती है या न्यूज में ली जाती है, तो न्यूज के लिए तो आप न्यूज बुकलेट रेफर कर लेंगे, और करंट एग्जाम्स में भी कुछ ऐसी आ जाती है थ्योरी जो आपके कोर्स में नहीं है, उसको भी हम न्यूज बुकलेट्स में कवर करा देंगे या एज अ सेपरेट नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। तो आज ये थ्योरी जो हम करने जा रहे हैं विच इज गिवन बाय द कुर्ट लेविन, इन्होंने बोला कि भाई ये जो थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स फील्ड थ्योरी है ये दो फोर्सेस लेके आ रही है, मतलब दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं एक दूसरे के,
ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस को इवनली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो ये जो इनर्शिया का सिचुएशन है उसको ऑर्गेनाइजेशन मीट आउट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन चेंज की ओर काम कर सके, ठीक है। सो अभी क्या चेंज लाना है और रेसिस्टेंस ऑफ चेंज देखने को मिलता है, तो भाई दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक स्ट्रैटेजी लेकर आया, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी को भी हम डिस्कस करेंगे which we are going to call unfreeze, change and refreeze or freezing, ठीक है। लेकिन उससे पहले और कुछ बातें समझते हैं कि ये कुर्ट लेविन लेकर जब ये आए हमारे सामने थ्योरी, तो इन्होंने कुछ चीजें एजम्पशंस वहां पे मान करके रखी थी। इन्होंने बोला कि जो चेंज प्रोसेस लाएंगे, जो समथिंग नया लेकर आएंगे, ठीक है, वो हमारे जो करंट एटीट्यूड है उसको चेंज करेगा, उसके प्रैक्टिसेस को चेंज करेगा। सो द चेंज प्रोसेस इन्वॉल्विंग लर्निंग समथिंग न्यू एंड दैट चेंज द ओल्ड सिस्टम, ठीक है। तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड डेफिनेटली व्हेन चेंज इज गोइंग टू कम देयर इज अ नीड ऑफ लर्निंग, ओके। द अदर assumption इज चेंज विल नॉट अकर अनलेस देयर इज मोटिवेशन टू चेंज, ठीक है। सो देयर इज अ मोटिवेशन टू चेंज व्हिच इज हिडन एंड व्हिच इज assumed that it's a part of this theory, ठीक है। So without motivation, no change is possible. The other assumptions according to the quote is people are the hub of all the organizational change. Means without people, organization is nothing. So if a change need to be bring, people are involved, people are part. So any change, okay, either in the structure is required, either in the reward system is required, job design is required. People need to change, they have no options. So people is like you can say the center of organizational change, okay. The next assumption is there is a resistance to change we found everywhere, okay. And when it's talk about the goals of change which is highly desirable as per the assumption of this theory, okay. So resistance of change is found even when the goal is changed and which is goal is changing, that people also resist at that particular time to accept that goal change, okay. And the last assumption which is shared under this theory is effective change requires that reinforce new behavior, new attitude and organizational practices, okay. So these are assumptions. The assumption क्यों देखने पड़ते हैं, why what's the role of assumption is, it's because during that research phase that Kurt Lewin has take some assumptions, did the research, execute it and proven good, okay, and then that research applied to the wide level, that's also proved good on the proportionate basis, and then it's executed in wider organizational level. That's why assumption is very important, okay. So कूट लिविन की ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ चेंज विच इज कॉल्ड एज फोर्स फील्ड थ्योरी, ये दो तरीके का फोर्स लेकर के आएगी और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे होंगे। इन दोनों फोर्सेस को इवनली ऑर्गेनाइज करना जरूरी है अगर ऑर्गेनाइजेशन की रुकावट स्टेबिलिटी को हटाना है और उसमें कुछ चेंज लाना है। अब ये चेंज लाने के लिए जब ये रिसर्च किया गया, जब ये मॉडल बनाया गया, जब इस मॉडल पे काम किया गया, तो हमारे स्कॉलर ने कुछ मान्यताएं, कुछ बातों को एज्यूम कर लिया कि ये है, ठीक है। ये कुछ एजम्पशंस रखे गए उन्होंने इस मॉडल के साथ। पहले एजम्पशंस जो उन्होंने रखा कि जो चेंज प्रोसेस है उसमें नई चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, यानी थोड़ा मेहनत लगेगा, क्लियर। दूसरा इन्होंने एजम्पशन रखा जो चेंज है वो तब तक नहीं ऑकर हो पाएगा जब तक कि आप मोटिवेटेड नहीं हो, तो आप मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं तो चेंज होना मुश्किल है ना। तीसरा इन्होंने एजम्पशन माना रखा कि जो पीपल है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नो मैटर वो किस भी लेवल में हो, किस हायरकी में हो, जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी चेंज हो रहा है पीपल को चेंज लाना पड़ेगा। यानी पीपल जो है वो सेंटर पार्ट है। स्ट्रक्चर में चेंज है तो पीपल में चेंज लाना पड़ेगा, रिवॉर्ड सिस्टम में ले तो पीपल में चेंज लाना पड़ेगा, जॉब डिजाइन में चेंज है तो पीपल में चेंज लाना पड़ेगा, गोल में चेंज है तो पीपल में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक। और इन्होंने एक असम्पशन बोला कि रेसिस्टेंस तो देखा जाएगा चेंज में, लेकिन तब भी देखा जाएगा जब गोल में चेंज लाया रहा है, और गोल में चेंज लाने की वजह से काफी ज्यादा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट असम्पशन जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि अगर इफेक्टिव चेंज लाना है तो हमें एक नया बिहेवियर करना चाहिए, एक नया बिहेवियर को लाना चाहिए, एक नया एटीट्यूड को लाना चाहिए और नए ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से कल्चर में चेंज ले आना चाहिए। तो ये एजम्पशंस मान करके इन्होंने ये थ्योरी हमारे सामने रखी, ये मॉडल रखा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर कोई चेंज को, हमें चेंज प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उस चेंज की जरूरत क्या है,
इस जगह पे इस चेंज की जरूरत क्या है, इस वक्त उस चेंज की जरूरत क्या है। तो लिविन ने इसको कैसे बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारे सामने पुट किया और क्या बोला कि मोटिवेशन फॉर चेंज मस्ट बी जनरेटेड, मोटिवेशन फॉर चेंज मस्ट बी जनरेटेड बिफोर चेंज कैन ऑकर। ऑकर होने से पहले, चेंज को लाने से पहले आप मोटिवेट कर दे लोगों को, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, मदद मिलेगी। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू री एग्जामिन, ठीक है, फॉर द एजम्पशंस वन सेल्फ एंड विद द अदर्स। तो सारी चीजें जो है एक तरीके से रिकैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। और यही वजह है कि अनफ्रीजिंग स्टेट से जो हमारा चेंज शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या सोचा कि क्यों ये चेंज की क्या जरूरत है इस वक्त, इस समय क्या जरूरत है इस चेंज की। तो दैट्स व्हाई द प्रोसीजर स्टार्ट विथ अनफ्रीजिंग, ठीक है। और इस फोर्स फील्ड चेंज एनालिसिस में हम जो इनबैलेंस ड्राइविंग फोर्सेस होंगे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जैसे कि मार्केट में कोई चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, कल्चर्स में चेंज आ रहा है, न्यू स्किल देखने को मिल रही है, तो ये जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं और प्लस जो रुकावटें हैं, जो रिस्ट्रेन करने वाले फोर्सेस है, लाइक डर, इंडिविजुअल का डर, उसका फेलियर, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी कि पुराने पत्ते पे चल रहा है तो चल रहा है, ये सारी चीजें चेंज लेकर आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, गोल अचीव करेगा, सक्सेस अचीव करेगा। सो उसके लिए 3 स्टेप हैं, अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीज और फ्रीज। I would try to conclude in the other language that under this theory, the Kurt Lewin, after these assumptions, he said that the main beginning of this change process is this first step is to understand the why is the change is needed and why at this time, why the changes must take place. Okay, so Lewin said, share with us that motivation for change must be generated before the change can occur. That means before executing the change or before welcoming the change or before thinking about the change, please motivate the people. And one must be helped to re-examine, which is the assumptions must be generated before change can occur. That means it gave a second thought to each and every verdict and each second thought to assumptions which has been taken by the court level. Okay. So when he said first we have to think why the change is needed. So it started with unfreezing. Unfreezing. So the process begins with the unfreezing stage where the change begins. Okay, and in this change analysis model, so he said that there is an imbalance between the driving force and restraining force. There is an imbalance. There is an imbalance between driving force and restraining force. Okay, so what are the driving force? Driving force means when the thing which is demanding the change. What the things demanding the change? New personnel, new technologies, new market things, what the markets demands. So new personnel, new technologies, like market demand, customers expectations. Okay, so these can be driving force or the forces which to change, forces which ask you, ask the government, okay, go and change it. Okay, and restraining force, restraining, that means that is the old stability dogmas which the company is already following. They don't want to change it, they don't want to overcome the stability. Fear among the employees of losing the job, losing their power, losing their responsibilities and authorities they are holding above some people under them, working under them as a subordinates. Okay, so fear, okay, or stability, these are the restraining force, restricting the force. Time, sometimes time is also constant. There is no that much time allowed to the organization not having that much time to bring the change into the organization. Okay, finance not having an affordable cost. Okay, so that's a difficult for an organizations to bring that change. So if we understand these things diagrammatically, okay, we try to understand these things. Suppose this is a status quo. What is static? It is a stable organization, is stable at that particular time. Okay, that's for a good understanding. And then there is a need for change. That means unfreeze. Now bring the change and then refreeze. Yeah. So we are receiving some kind of
restraining force. Okay, I'm writing F, please carry it, but never use shortcut in the examination, neither in your answer writing practice, because student understand that if they are using in answer writing practice, यार इसमें तो लिखना है, will do letter with the full form. No, you in all and every case you repeat that same mistake. So do not execute these things in your answer writing practice. Don't use any kind of shortcuts. Okay, and we have some kind of driving force. Some of the driving forces, and this is supposed to be organization, desired state or desired level, which can say any of the word, desired state or desired level. Okay, so this is unfreezing, change or refreezing. Okay, and we have seen how the organization is working. Unfreeze is a situation where the employees are ready for change. We have to create the employees, motivate employees, bring them changes into the employees to, okay, now unfreeze yourself, accept that change, and that change is good for you. Do them counseling, do different scenarios. Okay, we have already discussed that, and then bring the change. Now execute the change, execute that intent, then refreeze it. Why refreeze it or freeze it change again? That means that change, the new change need to be become permanent. That should be become an habit of each and every employee working within the organization, that become the part of culture of the organization. Okay, so first step is organization has to unfreeze the driving and restraining forces, okay, from like stability positions, okay, and to unstable position, the quasi equilibrium positions. Okay, and then an imbalance which is introduced to the force to enable the change take place, then what can be done? Increase the driver, reduce the strain, and increase the driving forces. Okay, and the third, then after completing the second stage, brought back into the quasi equilibrium and refroze it, make it stable, make it habit, make it culture of the organization. In the other language, if you want to conclude, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज. अनफ्रीज यानी ऑर्गेनाइजेशन इस दर्रे पे बहुत समय से चल रही है, लगातार चल रही है, ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रेन करने वाले फोर्सेस हैं, यानी रोकने वाले फोर्सेस है कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें ये चेंज नहीं चाहिए. और कुछ सारे ड्राइविंग फोर्सेस है. ड्राइविंग फोर्सेस मीन्स की चेंज लाना जरूरी है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय सारे लोग एक संग फ्लरिश होंगे, है ना. तो चेंज इज इंपॉर्टेंट, लाना चाहिए उसे. लाइक पहले पेपर वर्क में धीरे धीरे लिख रहे हैं और सैलरी भी कम है, अभी ऑनलाइन कर लिया, स्किल इंप्रूव कर ली, ट्रेनिंग दे दिया, तो सैलरी भी बढ़ गई, ऑर्गेनाइजेशन का काम भी अच्छा हो रहा है, टर्नओवर अच्छा हो रहा है, ज्यादा कस्टमर मिल रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, है ना. तो जरूरी है. तो ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, वो बताएंगे आपको कि भाई चेंज जरूरी है, करवा लो. अनरिस्ट्रेनिंग फोर्स, हमें चेंज नहीं चाहिए, हम खुश हैं जैसे भी हैं. सो अभी क्या अनफ्री सिचुएशन में क्या है, हमें रिस्ट्रेनिंग यानी रोकने वाली चीजों को समझा करके उसे कम करते चले जाना है, और ड्राइविंग फोर्सेस को, जो अच्छी चीजें हैं, जो पॉजिटिविटी, जो चेंज के लिए, उनको बढ़ाते चले जाना है. ये जब करेंगे उसके बाद हम क्या स्टेज पे आ जाएंगे, जब हमने उसे कम किया रिस्ट्रेनिंग को और ड्राइविंग फोर्स को बढ़ा लिया, उसके बाद हम चेंज को एग्जीक्यूट कर देंगे. अब चेंज एग्जीक्यूट हो गया ग्राउंड लेवल पे, अब उसको भाई परमानेंट कर देना. ऐसा थोड़ी नहीं कि फिर से वापस उसी पुराने में 4 दिन किया यार, चलो ठीक है आज लैपटॉप यूज कर ले, 1 साल हो गया यार, अभी तो उंगलियां दर्द हो रही है लैपटॉप में काम करने पे, ऐसा चलो पुराने तरीके से कॉपी में काम करते हैं. नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. यू हैव टू bring the change in the organizations to survive in the economy, to survive in the industry at large. Okay, so then we need to rephrase. हमें क्या करना पड़ेगा? rephrase करना पड़ेगा, यानी जो नई changes लाए हैं ना, उसको अब डेली हैबिट्स में लाना है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में लाना है. एंड दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज कॉल्ड रीफ्रेज. सिचुएशन इज कॉल्ड रीफ्रेज. क्या? तो आई होप आपको ये जो डायग्रामेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रेज, ठीक है. तो भाई लिविन ये इतनी सारी मेहनत करके ये सारी हमारे लिए थ्योरी लेकर आया, ड्राइविंग फोर्स, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, इसमें कुछ क्रिटिक्स भी निकल के आए. क्या क्रिटिक्स? यानी डिसएडवांटेज और कॉन्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई बहुत ही सिंपल टेक्निक इन्होंने ऑप्ट की, बहुत ही मैकेनिस्टिक थी, ठीक है. सो व्हाट द क्रिटिसिज्म, व्हाट एज पर दिस मॉडल इज दैट इट इज सो सिंपल and mechanistic, which is maybe not applicable in every kind of present even organization. So it's not possible in present organization. And according to the Levin
Levin's plan change model, ठीक है, he failed to take into consideration the transformational change, ठीक है, he only, this process is useful only for the incremental changes but cannot be possible for transformational changes, okay, and it's also ignored the power conflicts. How it can be, तो it's ignore the power, the conflicts and the politics in the organizations, ठीक है, people's feeling, people's emotions, ignore it. So that is a disadvantage of this theory. And the last is model support the top down approach. How? Because who is doing all these stuffs, who is doing all this stuff, who is doing is unfreezing and refreezing stuff, this is top down, not bottom up, okay, so it's ignore this, and that's why this is called some of the criticism or constant disadvantage of this model. However, still many organizations still using this COVID-11's model and executing the changes at the ground level, okay. So this is all about the model of change. So with this we are winding our organization behavior and winding up our management of change session, ठीक है, आज के सेशन के थ्रू हम अपना ओबी के सेशंस को प्लस हमारे मैनेजमेंट ऑफ चेंज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कुछ ऐसी रिलेवेंट थ्योरी अगर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो टीम विल शेयर यू विद जो है सप्लीमेंट्री नोट्स और पार्ट ऑफ बुक मटेरियल, और अगर कहीं पे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, ऑडियो सेशंस की नीड होगी, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और जहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट की नीड नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी रिलेवेंट, बट हम चाहते हैं कि एक बार आप उसको रीड करें ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग में उस मॉडल का यूज कर सके, आंसर राइटिंग में क्रिएटिविटी में डाल सके। तो आंसर राइटिंग में कुछ आपकी वैलिडेशन कराने के लिए हम आपको सप्लीमेंट्री नोट्स के थ्रू जो है अपडेट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप यू हैड अ ग्रेट नॉलेज विद ओबी, and I hope I helped you understand a very in a simplest way organization behavior. मेरी उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से मदद करी हो कि आपने ओबी बहुत ही आराम से कवर अप कर लिया हो। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हम करा सकते हैं, उसको कमांड आपको बार बार रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। टीम से जितना मैक्सिमम सपोर्ट होगा टीम आपको करेगी, ठीक है, बट वी नॉट गोइंग टू टेक इंडिविजुअल एस्पिरेंट एज एन, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक के लिए, इसीलिए हम ट्रैकिंग शीट एक यूनिक वे लेकर के आए, और ये यूनिक वे आपको मैं आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी। दिस इज आफ्टर अ 2 year रिसर्च वर्किंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो दिट्स एप्लीकेबल देयर ऑल्सो, और आपको भी मदद कर रही है। और मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए हैं स्टूडेंट के, दे आर हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट। सो आई होप आपको भी ये मदद कर रही हो। प्लीज इसका मैक्सिमम सपोर्ट लें, मैक्सिमम बेनिफिट लें, ठीक है, और कमांड करें, और जिस सपने की ओर आपने कदम बढ़ाया है उसको हासिल करें। इसके लिए मेरी आपके प्रति बहुत सारी गुड विशेस हैं। सो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, स्टे डिटरमाइंड, एंड फॉर एनी असिस्टेंस फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। सो हैप्पी लर्निंग, सी यू in the future journey and hope to see you soon. Take care. Bye bye.